नहीं आए मैं घर से नहीं निकला, तुम छत पे नहीं आए मैं घर से नहीं निकला, ये चांद बहुत भटका सावन की घटाओं में। आप देख रहे हैं खास बात इंडिया, मैं हूं संजय सिन्हा। आप सभी दर्शकों का खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत। आइए खबरों की तरफ चलते हैं। बिहार विधानसभा में आज जबरदस्त तरीके से हंगामा किया गया, विपक्ष का हमला हुआ। आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव की तरफ से सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला गया। तेजस्वी यादव ने कहा कि विधायकों की पिटाई के मामले में, विधायकों की मारपीट के मामले में अभी तक कुछ भी फैसला नहीं हुआ है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार विधायकों की पिटाई करने वाले अफसरों को बचाने में लगी है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए तेजस्वी यादव की तरफ से। और मॉनसून सत्र चल रहा है, मॉनसून सत्र के दूसरे दिन आज जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। आइए इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हमारे पास एक अहम खबर आ रही है। आसनसोल के बर्नपुर इलाके से एक खबर आ रही है। बर्नपुर के वागन कॉलोनी में जो द बर्न स्टैंडर्ड कारखाने से जुड़ा हुआ है, ये इलाका बर्न स्टैंडर्ड से जुड़ी हुई इस कॉलोनी में बहुत सारी असुविधाएं हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। न बिजली की यहाँ पे आपूर्ति की जा रही है सही तरीके से, न पानी की सप्लाई की जा रही है। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेता यहाँ पे हैं उत्पल सेन। इनकी मौजूदगी में, इनकी देखरेख में यहाँ आंदोलन किया गया। स्थानीय लोगों से भी हमारे संवाददाता ने बात की और तृणमूल कांग्रेस के जिला स्तर के नेता उत्पल सेन से हमारे संवाददाता ने बात की। तृणमूल कांग्रेस के जिला महासचिव उत्पल सेन ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं और यहाँ के लोगों का क्या कहना है। কিসের জন্য? দেখুন, এটা দীর্ঘদিনের একটা সমস্যাটা তৈরি করেছে বাস স্ট্যান্ডার্ড ম্যানেজমেন্ট, যেটা এখনও আছে। বিক্রি তো করে দিয়েছে, যেটা একটা লাভজনক সংস্থাকে যেভাবে বিক্রি করে দেওয়া হলো, এটা একটা দুর্ভাগ্যজনক। যাক, সেই কথা। কিন্তু এখানকার যে সমস্ত মানুষরা যারা দিন আনে দিন খায়, সেই সমস্ত মানুষদের ন্যূনতম যে জলটা ওরা পেত, সেই জলটা আর লাইটটা দিত সেই রাত 9টা থেকে ভোর 5টা পর্যন্ত, সেটাও কেটে দিচ্ছে। এত নির্লজ্জ বেহায়া এই সমস্ত কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি। এরকম নীতি আমরা দেখিনি। আমরা ইমিডিয়েট ডিমান্ড করছি যে আমাদের এই এলাকার বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকে এখানে আসতে, উনি দেখে যান এবং উনি এই যে সমস্যা হয়েছে, উনি তো এখানকার মানুষের ভোটে বিধায়ক হয়েছেন, এখানকার মানুষ ওনাকে জিতিয়ে। আমরা চাই উনি এসে এখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলুক এবং এই যে সমস্যাটা ডেলি যে তৈরি হচ্ছে, এই সমস্যাটা কীভাবে কেন তৈরি হচ্ছে, তাদের সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের যে নীতি তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এই সমস্যাকে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং এই জল আর লাইট মানুষের যেটা মৌলিক অধিকার, এটা অবিলম্বে ফিরিয়ে দিতে হবে। এবং এরই দাবিতে এই এলাকার মানুষরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করছে, কিন্তু আমাদের বিধায়ক এবং আমাদের সাংসদ এদের কর্ণপাত কানে কথাগুলো যায় না। এরা জিতে পড়ে কোথায় হাবিস হয়ে গেছে, কোথায় হাওয়া হয়ে গেছে কেউ জানে না, ভোট নিয়ে চলে গেছে, এখনও ওদেরকে খুঁজে পাওয়া যায়। তাই আমরা দাবি করছি আপনাদের মাধ্যমে যে ইমিডিয়েট অগ্নিমিত্রা পাল আসুক এবং এখানের সমস্যা দেখে যান। এর আগেও তো দাদা এরকম বিক্ষোভ হয়েছিল, তারপরেও কি এর আগেও বিক্ষোভ যখন হয়েছিল, সেই সমস্ত সাময়িক আমরা সেই আন্দোলন করার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীকালে তারা আমাদের দাবি মেনেছিল এবং সেই দাবি মেনে এতদিন সেই জায়গাটা চলছিল এবং আবার সেই জিনিস শুরু করেছে। বিজেপি যখনই কোনো রকমভাবে ক্ষমতায় চলে আসে যে কোনো জায়গায়, সেখানে এরকমই মানুষের প্রতি অত্যাচার হচ্ছে। এটা আমরা দেখছি গোটা ভারতবর্ষে। এই বার্নপুরও তার ব্যতিক্রম নয়। লোকসভায় নির্বাচনে আমরা এই এলাকার মানুষ সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়কে জেতানোর পর দুটো বড় কেন্দ্রীয় সরকারের ফ্যাক্টরি, যেটা তার মধ্যে একটা বার্ন স্ট্যান্ডার্ড এবং আপনারা জানেন ওইদিকে চিত্তরঞ্জনটা কি হিন্দুস্তান কেবলস, এই দুটো কারখানাকে বন্ধ করা হয়েছিল। এবং আবার যখন অগ্নিমিত্রা পাল জিতলো এবং তার পরবর্তীকালে দেখুন এখানকার জল লাইট কেটে দিল। তো এগুলো ওদের কাজ, এরা মানুষের কাজ করে না। মানুষের ভোটটা ধর্মের নামে নেয়, কিন্তু মানুষের কাজ এরা কিচ্ছু করে না। মানুষকে সবসময় কষ্ট মানুষ যাতে পায় সেই কাজটাই এরা করে। তো ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে, ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা হয়েছে মানে আমাদের প্রশাসনের মাধ্যমে কথা হচ্ছে, চলছে। আমরা বলেছি, আলটিমেটাম দিয়েছি, যদি আমরা এই দাবি না মানা হয় সেখানে এলাকার মানুষরা পথ অবরোধ করবে। আপনার নাম দাদা? আমার নাম উৎপল সেন, আমি জেলা তৃণমূল কংগ্রেস জেনারেল সেক্রেটারি।
मैं बागन कॉलोनी में रहती हूँ। हम लोग 4 बहन मम्मी हैं। हम लोग का पापा यहाँ पर है नहीं, पापा गुजर चुके हैं। हम लोग आज नहीं तो 20 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। पहले हम लोग का लाइन था, उसके बाद काट दिया गया। रात में सिर्फ 9 बजे आता है, सुबह में 5 बजे कट जाता है। आप तो जान रहे कोविड का पीरियड चल रहा है, बच्चे लोग का स्कूल बंद है, ट्यूशन बंद है, ऑनलाइन क्लास होता था। अब अगर बच्चे का फ़ोन में चार्ज नहीं रहेगा तो वो क्लास कैसे करेगी? किसी के घर में अगर जाएंगे, कोविड के समय तो ऐसी सिचुएशन है, कोई किसी के घर में होगा नहीं, जाने देगा नहीं। अब अगर आप ही बताइए, लाइन नहीं रहेगा, इतना गर्मी में हम लोग कैसे रहेंगे? एक तो केडी क्वार्टर है, उसमें हम लोग 4 जन, एक मम्मी, ना लाइन है, ना पानी है, ना ही कोई सुविधा है। तो आप लोग बताएं हम लोग रहेंगे कैसे? पहले बोले थे कि हाँ वोट दीजिए, हम लोग आप लोग के लिए कुछ करेंगे, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। जो लाइन दे रहे थे रात में कम से कम चार्ज यूज कर लेते थे, अभी वो भी नहीं दे रहे हैं। तो आखिर हम लोग क्या करें बताइए आप ही? और इतना गर्मी में कैसे रहना पॉसिबल है? तो यहाँ विधायक के पास गए आप लोग? सब जगह तो जा रहे हैं, कर रहे हैं, अभी तक तो कोई रिजल्ट ही नहीं क्लियर हो रहा है। हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। जब बोल रहे हैं मीटिंग में जाने, यहाँ जाने, वहाँ जाने, हम लोग सब कोई हर जगह जा रहे हैं। कुछ रिजल्ट सामने आएगा तब तो। आप ही बताइए क्या करें हम लोग? आपका नाम? विनीता वर्मा। जब जो तब लाइन पानी काट देता है, मेरा बच्चा बहुत रोता है, बहुत रोता है। सीजर का बच्चा बहुत रोता है, लाइन बिना लाइन का रहता नहीं है। पानी भी कट गया, लाइन भी कट गया, बच्चा कैसे रहेगा? कितना दिन से ये हो रहा है? ये तो अभी ये मतलब हो रहा तो ये 2 साल से ना, 2-3 साल से। अभी दिन बीच बीच में काट दे रहा है। 9 बजे रात में देता है, 5 बजे कट जाता है। मेरा बच्चा बहुत रोता है। तो मैनेजमेंट से क्या बातचीत हुई? ये लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो आप लोग अभी क्या चाहते हैं? अभी चाहते हैं हम लोग को लाइन देखा है, मेरा बच्चा बहुत रोता है। लाइन और पानी। आपका नाम? काजल कुमारी राम। रानीगंज के बुजिर बांध इलाके में एक घटना घटी जिसे देखकर, जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। दरअसल बुजिर बांध इलाके में रहने वाले अजित कुमार मजूमदार की अपने ही घर में बेहोशी की हालत में उन्हें पाया गया। लोगों ने समझ लिया था कि उनकी मौत हो गई है या वो कहीं बाहर चले गए हैं। उनके घर में काम करने वाली जो बाई है, जो नौकरानी है, वो कल शाम को भी उनके घर पहुंची, बहुत देर तक दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई भी सरगोशी नहीं हुई, उनकी कोई भी आवाज़ सुनने को नहीं मिली। पड़ोसियों को जाकर उसने बताया कि वह दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं, पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है। और पड़ोसियों ने इकट्ठा होकर पुलिस को इसकी जानकारी दी। जब दरवाज़ा खोला गया तो अंदर अजित कुमार मजूमदार की लाश तो नहीं मिली, लेकिन वो बेहोशी की हालत में अपने घर में ही पड़े हुए थे। उनकी हालत बेहद ख़राब थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया और होश लाने के बाद ये पता चला कि वह एक बीमारी से ग्रस्त है और इसकी वजह से वह बेहोश हो गए थे और बेहोशी की हालत में वह अपने घर में थे। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है, तफ्तीश कर रही है कि आखिर अपने ही घर में वो बेहोशी की हालत में कैसे आ गए। सचमुच कोई बीमारी के शिकार हुए या फिर उन्हें बेहोशी की हालत में किया गया। इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। কাল এলাম স্যার 4টার সময় এসে ডাক দিলাম, আওয়াজ পেলাম না, 5টা বেজে গেল, দিয়ে বাড়ি চলে গেলাম। আবার সকালে এলাম, দেখি গা যদি খুলে গেটটা, তো খুললাম, ডাকলাম 1 ঘন্টা ধরে, তো ভিড় হয়ে গেলো সবাই। তো বলছে কী হলো রে? না দেখো মামা খুলছে না, অন্যদিন রাত দেয়, আস্তে আস্তে আসে, তো পেলাম না যখন খবর, তখন আমি পার্টির লোককে জানাতে গেলাম। আপনি কি করেছেন? হ্যাঁ, কি করছেন? কাজ করি, এই বাসন ধুই আর রুটি করে দিই, আর কিছু না। দুলাকে পেয়ে যে আপনার কি নাম আছে? হ্যাঁ, নামটা কি আছে বলেন? ওর নামটা জানি না আমি। কি নাম? হ্যাঁ, অজিত অজিত মজুমদার। আপনার কি নাম? আমার নাম বুলি। এই জায়গার নাম? বুজিরবান। বুজির বাঁধে কি হয়েছে? বুজির বাঁধে কি হয়েছে, একটা মানুষ বাড়িতে পড়েছিল, তো ইনি বাড়িতে কাজ করে, ইনি খবর দিল, ইনার বাড়িতেও খবর দিয়েছিল, তো ওনার বোন এসেছিলো, দেখে পরে পালিয়ে গেছে। তো আমাদের যত পাড়ার ছেলে আছে, 2টা পাড়া মিলে বললো হয়েছে কী হয়েছে না হয়েছে, মারা গেছে কি না, কত ভয়ে খুলছে না। তো বড়োবাবুকে ফোন করলাম, মেজবাবুকে ফোন করার পর মার্শাল এলো। মার্শাল আসার পর তালা ভাঙে পড়ে মানুষটা দেখলো বাঁচে আছে।
তো মানুষটাকে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কি নাম মানুষের নাম কি? অজিত মজুমদার। এই জায়গার নাম? এই জায়গাটার নাম বুজিরবান শিব মন্দির। আপনার নাম? আমার नाम मितुल केवल। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के बराकर में जाम की विकराल समस्या है। जाम की विकराल समस्या को देखते हुए आज एक महत्वपूर्ण बैठक की गई और इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के एसीपी उमर अली मोल्ला। उनकी अध्यक्षता में यहां बैठक हुई और इस मौके पर कुल्टी थाने के प्रभारी असीम कुमार मजूमदार भी खास तौर से मौजूद थे और इन दोनों ने यहां के लोगों से बातचीत की और उनकी राय ली और जाम की समस्या का कैसे निदान निकलेगा इस बारे में खास तौर से लोगों की राय ली गई और इस बारे में रास्ता बनाने का प्रयास किया गया ताकि यहां के लोगों को जाम से निजात दिलाया जा सके। গোয়ালা ফ্যামিলি আছে, গরু মো সবই কিন্তু মেইন রোডের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। কোনো রকম কোনো মানে যে মালিক বা যে প্রপার লাইন দিয়ে চলে যাচ্ছে। सभी समाज में पुलिस का होना बहुत जरूरी है। तो मान के चलिए अगर सोसाइटी में पुलिस का खत्म हो गया तो हम लोग कहाँ जाकर ठहरेंगे, ये सोचने वाली बात है। এটার মধ্যে যেহেতু আন্ডারগ্রাউন্ড আছে না, তাই আমার সবসময় একটা মাথায় রাখতে হবে মানে আগুন লেগে যায়। না না ওরকম আন্ডারগ্রাউন্ড নেই স্যার, জাস্ট বেসমেন্ট আছে, মানে আপনার সামনে থেকে পুরো খোলা আছে, দোকানগুলো আছে সামনে, ওর ব্যাক পোর্শন পুরো পার্কিং আছে, পিলার দেওয়া আছে। झारखंड के निरसा में आज इंडियन रिपोर्टर्स एसोसिएशन की तरफ से निरसा क्षेत्र के पूर्व विधायक और जाने माने समाज सेवी अरूप चटर्जी का अभिवादन किया गया, नागरिक अभिनंदन किया गया, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया गया और मोमेंटो दिया गया और ये तमाम चीजें देकर उनका तहे दिल से स्वागत किया गया, उनको सम्मान किया गया और इसके लिए उन्होंने इस संस्था के तमाम पदाधिकारियों और सदस्यों का आभार व्यक्त किया। और आप देखेंगे कि हमारे संवाददाता ने जब अरूप चटर्जी से बात की तो उन्होंने क्या कहा। नहीं, मैं इंडियन रिपोर्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया को धन्यवाद देना चाहता हूं जो उसने हमें समाज सेवा के लिए हमें प्रोत्साहित किया गया और हमें सर्टिफिकेट्स हमें प्लेट दिया गया। इससे एक प्रेरणा तो मिलती है जो लगातार और समाज के प्रति, अपने देश के प्रति और गंभीरता के रूप में काम करें और भविष्य में हम समझते हैं जो यहाँ शोषित पीड़ित गरीब लोगों को और भी हम लोग आगे बढ़ के मदद कर सकें। तो फिर से IRA को धन्यवाद और आपकी इस प्रोत्साहन के लिए मैं आगे भविष्य में और भी अच्छे तरीके से काम कर सकता हूँ। पश्चिम बंगाल में एक दल से दूसरे दल में जानने का सिलसिला लगातार चल रहा है। सिलीगुड़ी से हमारे संवाददाता मनोज शर्मा ने खबर भेजी है। यहां कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन फिर से थाम लिया। आपको हमने बताया था कि इससे पहले कुछ लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया था और आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम के तहत यहां कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। बंगाल के जामुड़िया पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो यहाँ के लोगों को नहीं दी जा रही हैं। यहाँ से रजिस्टर्ड पोस्ट तक नहीं भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को खासे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों से बातचीत की और स्थानीय लोगों से भी उनकी राय ली और इस संदर्भ में जामुड़िया चेंबर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट महेश सावरिया से भी हमारे संवाददाता ने बात की।
रहा है कि अभी पोस्ट ऑफिस में लोग रजिस्ट्री के लिए घूम रहे हैं, रजिस्ट्री नहीं हो रही है, इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम लोगों को जितना आ रहा है हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका अभी हम नया किए हैं जो है, तो वो जब तक मेरा आईडी यहाँ पे एलोकेट नहीं होता है तब तक नहीं होगा। सर लोग काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं, पिछली बार भी नहीं हो रहा था। करेंगे क्या बोलिए, अगर कोई स्टाफ रहेगा तब 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 ना हम लोग करेंगे। स्टाफ नहीं रहेगा तो लोगों को तो काफ़ी परेशानी हो रही है। हो रहा है, ये तो हम भी आपके साथ हम कर रहे हैं कि हो रहा है। कब तक चालू होगी यहाँ रजिस्ट्री? आप वहाँ पे एसपीएम है, आप पूछते करिए बात, ठीक है। सर आपका परिचय? मेरा नाम कुछ दिनों से देखा जा रहा है लोगों की कंप्लेन आ रही है जामड़ा पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग। कुछ लोगों का कहना है कि जाने से काम नहीं होता, कुछ लोगों का कहना है सिर्फ पार्टिकुलर लोगों का काम हो रहा है। आज हम लोग एक प्रतिष्ठित व्यवसायिक यहाँ का जन्म यहीं रहते हैं, जामड़ा चैम्बर को 22%। हम लोगों को जब इतनी असुविधा है, जामड़ा पोस्ट ऑफिस एक गवर्नमेंट सरकारी संस्था होते हुए जनरल पब्लिक को कितनी असुविधा हो रही होगी, इस पर विचार करना है। कितने दिनों से ये समस्या आ रही है? मेरे पास तो कई दिनों से कंप्लेन आई थी, मैं खुद से आज आके बात किया तो देखा कि वे लोगों का कहना है कि जब अभी स्टाफ नहीं है, जब स्टाफ आएंगे तब होगा। मैं नया ज्वाइनिंग किया हूँ, इस तरह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आपका परिचय? मैं कुमार सावड़िया, जामड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स 22%। झारखंड के निरसा में सीएनजी सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया। झारखंड के निरसा में निरसा सर्विस स्टेशन में इस सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया और इसका उद्घाटन किया एचसीपीएल के चीफ जनरल मैनेजर एस हरिशंकर ने। इस मौके पर गेल के ऑफिस इंचार्ज मौजूद थे, तपन पैलवी, और उनके साथ ऋषभ कुमार भी यहां मौजूद थे जो पंप के संचालक हैं। इनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। मैं श्री स्वर्गीय श्री राजेंद्र प्रसाद साहू जी का पुत्र निरसा सर्विस स्टेशन से बोल रहा हूँ। यहाँ पे सीएनजी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि फिलिंग भी अभी जैसे आप देख रहे होंगे फिलिंग हो रही है। और ये सीएनजी पूरे धनबाद में पहला पंप है जो यहाँ पे सीएनजी स्टार्ट हुई है, और ये पॉल्यूशन कम करती है बाकी पेट्रोल डीजल के गाड़ी के मुकाबले में, और उससे काफ़ी सस्ती भी है। ये 60 रुपया पर केजी के हिसाब से, जो कि इनका जो एवरेज माइलेज है वो काफ़ी अच्छा है आम गाड़ियों की तरफ से, आम गाड़ियों के मुकाबले। और ये खुला इससे है कि आने जाने वाले लोगों को, जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, जो भी यात्रा कर रहे हैं, उनके लिए सुविधा, जो कैलकाटा से इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं आने जाने में यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इससे। ये काफ़ी किफ़ायती है, मतलब महंगा भी नहीं है, काफ़ी किफ़ायती है। और इन फ्यूचर सीएनजी गैस ही मतलब मार्केट में चलेगा। डीजल और पेट्रोल धीरे धीरे कम होते जा रहा है, हमको इंपोर्ट भी कम करना है। लगातार महिलाओं के कल्याण के काम किए जा रहे हैं, जरूरतमंदों की लगातार मदद की जा रही है। आज भी कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के शीतलपुर 4 नंबर स्थित केवड़ा पाड़ा में जाकर इस संस्था के पदाधिकारियों ने लोगों की मदद की। आपको बता दूं कि पूनम मिश्रा की अगुवाई में लगातार ये संस्था आगे बढ़ रही है, यहाँ के लोगों की मदद कर रही है, जरूरतमंदों की मदद की जा रही है। आज भी जरूरतमंदों की मदद की गई और केवड़ा पाड़ा में जाकर जरूरतमंदों की मदद करने की कोशिश की गई। इस मौके पर संस्था की पदाधिकारी विथिका सरकार खास तौर से मौजूद थी और उनके साथ पुरोमिता चक्रवर्ती भी इस मौके पर मौजूद थी। शीतलपुर 4 নম্বর কেওড়াপাড়াতে বিশেরগড় ত্রিশক্তি মহিলা মণ্ডলের প্রধান অধ্যক্ষা শ্রীমতী পুনম মিশ্রা ভাবিজির অনুপ্রেরণায় আমরা এই লকডাউন পিরিয়ডে মানুষের রোজগার চলে গেছে, তাই আমাদের স্বল্প প্রচেষ্টায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর
দাঁড়াচ্ছি। তাই এই 4 নম্বর শীতলপুর কেওড়াপাড়াতে এসে আমরা এখানে 30 জনকে চাল, আলু, মশারি, সাবান এবং মাস্ক প্রদান করলাম। आपका नाम है? বিথিকা সরকার।